राइट। लास्ट टॉपिक आपने किया था तो उसमें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में बताया था कि लॉग कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है। ओके, सो लेट्स हैव फ्यू मोर एग्जांपल ऑन दैट टॉपिक। मींस लेट्स से वी हैव log of 10 raised to the power 1 by 3 with base 10. Okay, so this is 1 by 3. Okay, next is, let's say we have log of 49 with base root 7. So this is what? Square divided by this 4. Third, like log of 1 by 8 with base 1 by 2. So this is 3. Okay. Next is log of 1 by 216 with base 36 is log of 6 raised to power minus 3 with base 6 square. So this is equals to minus 3 by 2. Isn't it? Next, log of 343 with base 1 by 49. So this is also negative number. It is 7 cube with base 7 raised to power minus 2. So this is minus 3 by 2. Sixth, log of, like और नंबर ले देते हैं 625, और यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 upon 625 with base 125. Fine. So this is again log 5 raised to power minus 4 with base 5 raised to power 3. So this is minus 4 by 3. I hope that is all clear to you. Fine. Note it down. चलिए, नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, which is properties of logarithm. Okay, properties of logarithm पे आते हैं. So the first property is log of m n with base a is equals to log of m with base a plus log of n with base a. Fine. All right. तो ये प्रॉपर्टी काफी यूज होती है, फ्रीक्वेंट प्रॉपर्टी है, तो इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं ना. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू इट्स प्रूफ, बट प्रूफ से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है. ओके, सो लेट log m with base a is equals to x, log n with base a is equals to y. Fine. So we have m is equals to a raised to power x, n is equals to a raised to power y. So we have mn is equals to a raised to power x plus y. Okay. Now जो डेफिनेशन से हम चल के आए थे यहाँ पे लॉग के लिए, वापस से वही डेफिनेशन कि कोई भी नंबर अगर किसी एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है, सो वी कैन राइट दैट नंबर एज log mn with base a, we can write as x plus y. And what is x plus y? This is log m with base a and log n with base a. Fine. So hence it is proved. Okay. Likewise हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, that is second property we have is log m by n with base a, which is equals to log m
माइनस लॉग एम विद बेस ए माइनस लॉग एन विद बेस ए। फाइन, दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको भी हम सेम तरीके से प्रूव करेंगे, क्योंकि सामने लिखा हुआ है तो हम साथ के साथ कर लेते हैं। दैट हमारे पास m आ चुका है, m इज a raised by x, है ना? Likewise n is equals to a raised by y. So can we write m by n? Can we write m by n is equals to a raised to the power x minus y? So again, by the same definition of log, we can write log m by n with base a is equals to nothing. This is x minus y. Hence proved. Fine. नोट कर लीजिएगा आप, मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी मूव कर रहा हूं। सो सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी इज, सेकंड तो हमने कर लिया, थर्ड प्रॉपर्टी बोल लेते हैं इसे, है ना? थर्ड प्रॉपर्टी इज log of m raised by n with base a raised by b, है ना? इसको हम लिख सकते हैं n by b log m with base a। ओके, log m raised by n with base a raised by b is equals to n by b into log m with base a। फाइन, तो देखिए इससे क्या हो रहा है, ये हम कई बार कर चुके हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल log 16 विद बेस 27 कर लेते हैं। फाइन, तो देखो हमने क्या लिखा था अभी तक, 2 raised power 4 and this is 3 raised power 3। Fine. So this is 4 by 3 raised to the power log 2 with base 3। क्या ये हम पहले कर चुके हैं? Yes, we did it। log of 27 with base 81 लिखा है मान लीजिए, तो हम पहले जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, log of 3 raised power 3 with base 3 raised power 4। फाइन, तो 3/4 हम बाहर ला रहे थे, log of 3 with base 3 स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने आपको, तो ये 1 हो जाता है। दैट इज वाई इट इज 3/4 अ रैशनल नंबर। बट दिस इज नॉट रैशनल बिकॉज 2 और 3 को हम एक्सपोनेंट में, सेम एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फाइन, सो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं इस टाइप को। ओके, अब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं log m raised to the power n with base a can be written as n। उसी प्रॉपर्टी को देखो हम बार बार लिख रहे हैं एक तरीके से। हाउ, देखिएगा, मान लीजिए ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log ऑफ m इंटू m, है ना? मीन्स एक बार और लिख लेते हैं, दिस इज रिटन एज log ऑफ m इंटू m इंटू m इंटू m एंड सो ऑन m, कितना, n टाइम्स। यस और नो? ये हमने कितनी बार लिखा हुआ है, n टाइम्स with base a। So we have log of m raised by n with base a, है ना? वही सेम है। तो हमने इसमें क्या किया, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, log m with base a प्लस log m with base a प्लस log m with base a एंड सो ऑन। ठीक है, तो log m with base a इस तरीके से हम n टाइम्स लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे m जो है, m की पावर क्या है, n है। ठीक है, तो m n टाइम्स आ रहा है, तो ये टर्म्स भी कितनी बार आएंगी, ये भी टर्म्स n टाइम्स आएंगी। तो जब n टाइम्स आ रही हैं तो ये टर्म्स n टाइम्स ही ऐड हो जाएंगी। सो विल राइट व्हाट, विल राइट दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ m with base a into n। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसका नाम है बेस चेंज प्रॉपर्टी।
दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा फोकस करके हम इसे सीखेंगे सो दैट हमें पता चल सके कि हमें इसे यूज कैसे करने वाले हैं. ओके, सो इसमें क्या होता है, log m विद बेस n को वी कैन राइट log m with base a divided by log n with base a, which can also be written as 1 upon log of n with base a. Okay, चलिए इसे भी प्रूव करते हैं. So let log m with base a is equals to x, and log n with base a is equals to y. ठीक है, so we have again m is equals to a raised to power x. Okay, next we have n is equals to a raised to power y. m को थोड़ा सा हमने अलग तरीके से लिखा, लाइक m is equals to a raised to the power, देखो y अंदर किया और x डिवाइड बाय बाहर कर दिया, x डिवाइड बाय y बाहर कर दिया. ठीक है, सो वी कैन सी कि ये नंबर जो अंदर लिखा हुआ है a raised to power y, ये तो n था, तो n की पावर कितना हो गया, ये x बाय y. So by the definition of log, we can again write this as log m with base n is equals to x by y, which is nothing. This is again what? Log m with base a divided by log n with base a. And it's proved. Clear है? ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है, ये तो पहले ही लिख दिया था. ओके, है ना, तो ये आप देख लीजिएगा. इसको लेट मी ट्राई कि दूसरे कलर में आ जाए. चलिए अब कलर देख लेते हैं. लीव इट, फाइन. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम एक लास्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज स्वैप प्रॉपर्टी. And that is, if it is written a raised to the power log m with base b, then we can write this as m raised to the power log a with base b. This is the property. So let's prove it. ठीक है, देखिएगा. तो ये क्या बोल रहा है कि भाई लेट्स से दिस इज t, हमने इसको t मान लिया है ना, तो t इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर log m विद बेस b. दोनों तरफ हमने log ले लिया, तो वी हैव log t इज इक्वल्स टू log ऑफ a रेज टू द पावर log ऑफ m विद बेस b. ठीक है, तो ये पावर जो है बाहर निकल के आ जाएगी, log ऑफ m विद बेस b इनटू log ऑफ a. फाइन. नाउ log of t, this is equals to log m divided by log b. थोड़ा तरीके से लिख देते हैं थोड़ा सा, log m डिवाइडेड बाय log b इंटू log a. ठीक है, बेस मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट वी कैन टेक इट एज 10. ठीक है, बिकॉज अभी हमें बेस की यहाँ पे जरूरत नहीं है. ठीक है, सो अभी ये log b log m के नीचे लिखा हो या log n के नीचे लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो कैन आई राइट इट एज log a अपॉन log b को log a विद बेस b लिख दिया, एंड ये टोटल टर्म ये अब m की पावर में आ जाएगा.
So we can write this as log m raised to the power log a with base b. Okay. So this is log t. तो log के दोनों आर्ग्यूमेंट कंपेयर करेंगे. So t is again m raised to the power log a with base b. Clear? So that's how we proved it. ठीक है. तो t ही हमारा क्या था, स्वैप होके आ गया ना, a और m स्वैप हो जाएंगे. So please do remember कि we swap these two numbers. We do not consider anything about b. b वहीं पे रहेगा. Okay. m और a इंटरचेंज होते हैं बस. Okay. Okay, that's all for today. बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं.